Parth Samthan, Priyank Sharma have never been forcefully or touched or done things because both Parth and Priyank don't mind being touched by boys. I had decided that I will do this in a very nice way someday, where I'll win an Oscar or something, and I'll say that, listen guys, I like human beings, I love human beings, and उसका मतलब यह है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का हो या लड़की हो. So yes, I'm bisexual. आप मुझे ब्लैकमेल करके दिखाओ, आप में से कोई भी, कुछ भी. I'm not afraid at all. I am bisexual. I have been in relationships with both boys and girls, and as I grew up, I've had my share of things in life. My first relationship that I had, which was real, was with Parth Samthan. It was a relationship for almost 2 years. और 2 साल के बाद he ended up filing cases against me. Why? Because I was stopping him from leaving Yariyan, and he wanted to do something. He was lying. I know इस सब चीज़ों के बाद, knowing about me and how openly, most of you might not be very happy and might not want to hang out or whatever. वैसे भी कोई नहीं hang out करता, लेकिन I'm okay with that. He did something, not just this. He broke me. He broke my heart for the first time. He broke my trust because I never thought कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इस तरीके के जोन में जाएगा. और फिर उसके बाद जो र्यूमर्स फैलाने, चीज़ें करना. आपको याद होगा गौरी अरोड़ा ने उसके बाद एक वीडियो भेजा था जब मैं बिग बॉस के अंदर था कि विकास की गलती नहीं थी, उसे ब्लैकमेल किया गया था और बोला गया था कि ये होगा वो होगा. एनीवेज, मैं उस चीज़ में घुसता ही नहीं, मैं वो चीज़ें भूल गया था. एंड उसकी जो फिल्म बन रही थी जो नहीं हुई अभी तक, वो ख़त्म हो गई. जब 3 साल बाद वो वापस आया था ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उस सब के बावजूद उसे माफ़ इसलिए किया बिकॉज आई डेफिनेटली रियली वांटेड दिस टू बी गोइंग इन अ गुड सेंस, बिकॉज मैं सब पूरी चीज़ों को भूलना चाह रहा था यार. और पिछले 5 सालों से मैंने कभी भी बाहर जाकर ये पब्लिकली नहीं बोला कि ही वॉज इन रिलेशनशिप विद मी, बिकॉज आई डिडंट वांट हिम और हिज करियर टू बी इफेक्टेड. बिकॉज क्या है ना कि आई एम अ पर्सन लाइक दैट, लेकिन दीज पीपल आर नॉट. एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु थिंक इट्स अ फेक स्टोरी और वॉट एवर द फक, आई डोंट केयर, बिकॉज आई विल put out only one post. After that, nothing else at all, because I want to do what I want to love doing this, which is making content, creating content, and working and writing. Parth Samthan, 5 साल पहले मैंने आपकी सब ये बकवास बातों के अलावा भी जाकर कभी ये नहीं पब्लिकली बोला, पर आज बोला क्योंकि आपने मजबूर किया. आप उन लोगों का साथ दे रहे हो जिन लोगों ने इतना परेशान किया मुझे, उसके बावजूद भी. Be thankful that I'm not telling all the dirt about you. I'm not going to do that also. मुझे गंदगी नहीं फैलानी, लेकिन हाँ, मुझ पर अगर कोई भी गंदगी फेंकेगा उसको पता होना चाहिए I don't like dirt, and I will not allow it in my life anymore. Coming back to Priyank Sharma. Priyank Sharma, आपके बारे में बताना, आपके बारे में बोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप डिफरेंट हैं, आपके इश्यूज़ हैं, मुझे मालूम है. Priyank Sharma was the boy I was in relationship with, and the mistake that I have done is I have trusted two very bad human beings, very very bad human beings. ये जो 2 लोग बोल रहे हैं कि I have tried to touch them inappropriately or whatever the hell, no I haven't. They love getting touched. They should know this. And as a matter of fact, I never believed in relationships with guys because I was always with women outside also. But yes, I did have flings because boarding school से बाहर आया था मैं, तो मेरे experiences different रहे. It was Parth who told me that he can't be without being in a relationship. And so I was in a relationship where I invested a lot and I got hurt. After which I and Priyank actually started as very good friends. But then it turned into something else, and yeah, and then it's turned into this disgustingness
Parth has said not anything about me. Parth has said enough about me. Parth has filed cases against me. And जो इंसान बुरा होने देता है, याद रखिएगा, और उसको बोल रहे हो आप, please tell the truth to people. They won't. They just won't. And I don't care about everyone else anymore, because if people are insensitive enough to not care about a person crying, then who will? I'm done with this all nonsense. It's disgusting. Priyank Sharma is a very confused, complex child. He is not well. I have to tell you that he is not well. It has been a long time that I have faced a lot more shit from him. And now, please call him and ask him all these things. And once they have their answers, whatever their answers will be, post that will I go ahead and release one final post of mine on this, which will close the matter for everyone. But for now, you should all know that मैं इंसान को प्यार करता हूँ. I've had my relationships. कितना डर लगता है मुझे. हर कोई फ्लर्ट करता है, हर कोई चीज़ें करता है लाइफ में, और मैं अगर करता हूँ, और अगर मैंने स्नैपचैट पे चला गया, लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम बाहर कर देंगे, ब्लैक में. नो, एक इंसान जो कि लाइफ में अच्छा करने लगे और उसको हक नहीं रह जाता अपनी लाइफ जीने का, आपको मालूम है, क्योंकि खासकर समवन लाइक मी, आई हैड टू हाइड ऑल माई रिलेशनशिप्स. I cannot tell people anything about it. Very randomly, girls will also understand that there's a possibility that you can like both. So, for a relationship like that, it becomes very difficult. But now I am here. Whatever you want to say, whatever you want to do, please do. Last time also I couldn't come up because that time legally, if you would say that you were gay or bisexual, you can go to jail. But now you can't. Thankfully, our country allows us. It's the Pride Month apparently, and I'm with pride telling you that yes, this is what I am, and this is how I'm going to be living my life openly. I will fall in love with the person, with the human being. It could be boy or a girl. That's not for you to decide or comment on. It will be for me to decide. And all of you guys there, if you decide to hurt any other human being like this, just because उसमें बहुत प्यार है और वो इमोशनल है, बेटा तुम बहुत पिटोगे लोगों से, याद रखना. और मुझे अब क्या बोलूं, कहानी सुनाने की आदत नहीं रह गई और ना ही मुझे करनी है. माई बीइंग, माई सेक्सुअलिटी हैज़ रियली हिट मी अ लॉट. माई फैमिली डजंट अप्रूव ऑफ इट and they are very against it, and I have not done anything for LGBT people. क्या मैं तुम्हें दिखा कर तो नहीं करूँगा. अगर कभी भी ध्यान दोगे तुम, मेरे हर शो में there will be tracks, चाहे वो कबीर का ट्रैक हो, चाहे वो रोहन ने जो प्ले किया क्लास 2020 में. I have in my way tried to slowly and steadily tell people about the existence, about how normal it is to be. But it took me time. Not many people understand that, and I have lived my life like that. I've lived in fear, I've lived in blackmailing through people, these people who could just go ahead and send me notices, legal notices, क्योंकि मैं चैनल हेड था, और अगर किसी को पता चलेगा कि I had inclinations like this, करियर ख़त्म हो जाएगा. इसलिए वो केसेस भेजे थे मुझे. तो क्या ना, बहुत इमोशनल हूँ. मैंने ऐसे पब्लिक लेके बहुत, मैं तो हुई नहीं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, पर मैंने कभी नहीं बताया. अब बता रहा हूँ. इस लॉकडाउन ने मुझे अकेला कर दिया. फैमिली अप्रूव नहीं कर रही है, फ्रेंड्स नहीं इतना कर रहे हैं, तो लेकिन मैं हूँ नहीं अकेला. मेरे साथ कोई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने उसे. अंदर है मेरे, और आप सबके अंदर भी समवन वेरी स्ट्रॉन्ग. प्रॉब्लम इस पर नहीं होती कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि आप हैंडल कैसे करते हो, और मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे हैंडल करूँगा इन चीज़ों को. मैं बहुत परेशान था, मैं रिएक्टिव हो रहा था, चीज़ें हो रही थी, लेकिन नहीं होना मुझे रिएक्टिविटी की. मुझे सिंपल फैक्ट्स पे जाना है. अब आप चाहें किसी को फेक इंसान को उठाएं, मैंने ये किया वो किया, लेकिन फ़िलहाल प्रियांक एंड पार्थ डेफिनेटली नॉट यार. यू गाइज लव्ड मी सो मच एंड आई लव यू बैक सो मच. उसे तुम्हें जितनी गालियाँ देंगे दो, मैं तो नहीं दे रहा. आई हैड एन अमेजिंग टाइम. आई एम थैंकफुल एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, जिस समय के लिए दिया, जितना दिया. उसके बाद जो भी अपनी गंदगी करी,
वो आप याद रखें, मुझे नहीं याद रखना. बट आई नो दिस मच फॉर श्योर, आई एम रेडी. Bring out anything and everything that you can, because if you again try to do anything like this, you will be very sorry. And for everyone else जो भी ये देख रहा है और जिन लोगों ने भी उसका साथ दिया है, प्लीज़ याद रखिएगा, प्लीज़ let them make an official comment on this कि क्या हाँ झूठ है क्या सच है. Once they do, then I will accordingly go ahead and return back with proofs. मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया. शिल्पा जी, आप मुझे कास्टिंग का चीज़ सबसे बोलती थी, पार्थ का बताऊँ, मैंने आपको बता दिया. आप क्या बताएंगे आप मुझे? बोलो कास्टिंग का, बोलो ना. नहीं बोलोगे क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए एक अच्छा इंसान होता है. ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैंने भी गलतियाँ करी. प्लीज़, हर कोई करता है गलतियाँ. व्हेन यू आर इन अ पोजिशन यू एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स दैट यू शुड नॉट, बट आई हैव लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स. आई हैव बिकम बेटर एंड एवरी डे आई एम इवॉल्विंग. और वो इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि अगर आप इवॉल्व होने को रेडी नहीं है तो फिर आप ख़त्म हो जाएंगे. मैंने बहुत एवोल्यूशन किया है और मैं करता रहूँगा, अपने करेक्ट भी करता रहूँगा. लेकिन मेरा इंटेंशन, मेरी चीज़ें लाइफ में बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं और मैं बहुत बेटर हो चुका हूँ ज़िंदगी में और हो रहा हूँ. मेरी लाइफ में ज़्यादा लोग नहीं है पर उतने ही हैं जितने की होने चाहिए इस वक्त. और अब मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी. मुझे ऐसे मैसेजेस, कॉल्स, रैंडम चीज़ें हो रही हैं इस समय. पता नहीं है कैसे रिस्पॉन्स होगा लोगों का इसके बाद. हो सकता है जैसे मेरी फैमिली का रिस्पॉन्स बहुत ही ख़राब रहा, कुछ लोगों का और भी होगा. लेकिन वी विल सर्वाइव दिस. हम चूज़ नहीं करते, वी डोंट मेक अ चॉइस कि शुड वी बी गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, स्ट्रेट, ट्रांस. It comes to you. It's not a choice ever. And I also don't have a choice. But then life is not fair. ज़िंदगी नहीं है fair. फिर भी जीनी है और जीतनी है. जिएंगे भी और जीतेंगे भी. What happened with some of my friends is something that we will all try should not happen again ever. No matter who you are, जो भी इसको सुन रहा है इस वक्त, मुझे देख रहा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड. इफ़ यू आर बीइंग टॉर्चर्ड, इफ़ यू आर बीइंग कॉर्नर्ड, इफ़ यू आर बीइंग बुलीड, कॉल देम आउट. कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉल इट आउट एंड यू कैन सर्वाइव इट. इस स्पेस में मैंने अपने बच्चों को बोला था एक बार कि अगर कभी तुम कॉर्नर हो जाओ ना लाइफ में, जहाँ पर कोई तुम्हें इतना टॉर्चर करते हो कि यू वांट टू किल योरसेल्फ, को कोई रास्ता नहीं नजर आए, तो पिक अप द गन एंड शूट देम ओनली. मैं तो वैसे वाले जो इंसान तुम्हें इतना परेशान करे, लेकिन आज मैं अपने करेक्ट कर रहा हूँ. यू डोंट डू दैट. डोंट बिकम बैड बिकॉज दे आर बैड, बट येस, टेल अदर्स बिकॉज देयर आर अदर पीपल हु विल हेल्प यू. देयर आर पीपल एंड आई एम होपिंग while most of you people here might not get what I'm saying here right now, or like, you know, when a family doesn't accept you for who you are, बहुत बुरा लगता है, टूट जाते हैं अंदर से. लेकिन अब जो मैं हूँ यहाँ पर हूँ, पर कुछ लोगों ने मुझे बहुत हेल्प करी. कुछ दे वर स्टैंडिंग बाय मी एंड took them time, and I am right now here and I'm telling you guys, please help if anyone calls anyone out, because that's the only way the normal people like us can fight the people who are mean without empathy and everything else. I will come back some other time and talk, but I think अभी मैं थोड़ा सा वो रखा हूँ. I have thought मैं फ्री हो जाऊँगा, पर नहीं, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स में, मैं बहुत इंट्रोस्ट करेगी, पता नहीं क्या होगा. I really hope कि ख़राब नहीं हो ज़्यादा इससे. ये करना बहुत ज़रूरी था कि all my life I have lived like this, and with this coming out, I lost my family, I have lost friends, but what I want to do is find myself, and I'm going to do that.
आई रियली विल। यहाँ पर कितने रैंडम लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पर एक लड़का लिख रहा है, आई एम कॉलिंग यू आउट बिकॉज आपने मेरा ईमेल नहीं पढ़ा। किसी की लाइफ की सीरियसनेस नहीं समझ में आएगी तुमको यार, कभी नहीं आएगी। क्योंकि एक इंसान या छोड़ो, उम्मीद कम करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये जो किया है आज वो इसलिए किया है ताकि you fucktards, people like you should not be able to ever hurt other people. I called out the three of you, Shilpa Shinde, Priyank Sharma, Parth Singh Khan, for lying, for treating people like shit and everything else. Don't ever try to hurt again. जिस तरीके से पार्थ ने एक फेक एलिगेशन लगाया था उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हर कोई कंटिन्यू हो रखा था, कुछ तो मत कर, अरे घंटा बजा दो। अब एनी टाइम यू विल डू एनी थिंग टू एनी वन एल्स, रियलाइज विद माई एग्जाम्पल से इसने किया है पहले भी किसी के साथ, और वो आपसे पूछें। प्लीज़ गो हैड ऑल आउट एंड डू वॉट एवर द फिश यू वॉन्ट, जो करना है करो, ब्रिंग इट ऑन, आई एम हियर। जब मैं यहाँ बाहर आया हूँ, आई हैव डिसाइडेड एंड थॉट अबाउट दिस वेरी क्लियरली। I'm going to be standing just tall. And thank you very much, Lost Souls, for trending me every single day because of what I was about to do and being there. You guys have loved me and taken care of me more than my family because you are my family. मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, अब आप लोग कंटिन्यू करो, ये गॉसिप होने वाला हर जगह। So this is my life and I am going to do everything that I can to inspire, aspire and keep evolving and keep correcting myself. Thank you very much. Bye.